नहीं भाई, वेव इज अ लेंदी चैप्टर। लास्ट 2 स्लॉट में हमने उसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, लेकिन वो बेसिक डिस्क्रिप्शन हमने बहुत जनरली पढ़ी थी, नॉट इन एग्जैक्ट टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। सो आज की क्लास में वी वुड कवर दोज एसएलओज एंड बाकी चैप्टर हो जाएगा, वीड बी लेफ्ट विद पोलराइजेशन एंड डोपलर्स इफेक्ट। these two topics inshallah we'll cover in the lesson kal dopaher mein, and then we'd be good to go to the next chapter, that is superposition, and then we'll solve इनके collective past papers, right? चलें जी, starting with the basic description. In the last class, we had agreed that there are two types of waves. We have mechanical waves in which medium particles oscillate, right? So for the propagation of mechanical waves, the presence of medium particle is very important. Sound being a mechanical wave cannot travel through the space. Reason, there is no medium particle in the space. Therefore we say कि वो जब हम वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स वगैरह वाली रिएक्शंस पढ़ते थे ना 11 में न्यूक्लियर फिजिक्स में, तब वी यूज टू से कि वो वहां पर रिएक्शंस में साउंड जनरेट होता है, राइट? जब वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सोलर रिएक्शंस में, लाइट एनर्जी हम तक ट्रैवल कर जाती है, बट साउंड वी नेवर गेट टू हियर फ्रॉम स्पेस. द रीजन वाज because there is vacuum, there are no medium particles, and sound is a mechanical wave. It requires the presence of medium particle for its preparation propagation. Then फिर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक तो ये मैकेनिकल वेव्स हो गई, उसके अलावा वी हैव सेकंड टाइप ऑफ वेव, दैट इज ट्रांसवर्स वेव्स. Transfers are the ones which can pass through the medium and which can pass even in the absence of medium. हमने दोनों की बेसिक रिप्रेजेंटेशन देख ली थी, एक में क्रस्ट और ट्रफ के टर्म्स में एंड दूसरे में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के टर्म्स में. बट देन हमने ये डिसाइड किया था कि हमेशा जब भी हमने वेव को प्रेजेंट करना है, even if it is longitudinal or transverse wave, we always go with this representation because this makes it easier for us to identify the amplitude of wave, to identify the wavelength of wave, as well as the frequency of wave. And of course मुझे frequency पता है, तो फिर इसका मतलब है मुझे उस wave का time period भी पता है. ये जनरल डिस्क्रिप्शन तो हमने देख ली थी, एंड साथ ही हमने ये भी अग्री किया था कि जो ट्रैवलिंग वेव होती है, जिसको हम प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं, be it a single pulse or the continuation of pulses, this is nothing but transfer of energy. So wave transfers energy from one point to the other without transferring the material particle. Of course जो medium का particle है वो अपनी जगह पर रहते हुए up and down या to and fro, depending on if we are speaking of transverse wave or longitudinal wave, वो oscillate जरूर करता है, but वो अपनी main position के ही across oscillate करता रहता है, right? So on average, the medium particle does not leave its position. That is why there is this well-known statement which goes by wave transfers energy without transferring the material particle. Right? ये basic description हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी. यहाँ I have pasted for you the word to word definitions because we should be in a position to define these terminologies. Examiner may ask us to define wavelength or frequency, of course for one number, not more than that, but हमें पता है कि A levels में they underline the important terminologies and you do not write them in your definition, you do not get the mark even if you are trying to communicate the same thing. So right here I've mentioned for you the definitions for what is equilibrium position. Equilibrium position is this one. It is the undisturbed position of a particle. Then we have displacement. Of course अभी हमने पढ़ा ना, particle अपनी जगह से displace होता है, up and down या to and fro move करता है. किसी certain point पे आप displacement find out करना चाहते हो, तो let's say मैं इस time पे देखना चाहती हूँ कि displacement क्या है particle की. All I have to do is
टू आइडेंटिफाई कि ये अपनी अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से यानी अपनी मेन पोजीशन से कितना दूर है, दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट. लेकिन if I'm asked to mention the amplitude of the wave, amplitude always has to be the maximum displacement. No matter उन्होंने कहा है आप मुझे इस टाइम पे बताओ या फला टाइम पे बताओ, amplitude always has to be the maximum displacement. So you'd always start with the undisturbed position, you would end till the peak, be it towards positive या negative. यानी आप peak देखो या आप trough देखो, आपने vertical displacement देख लेनी है. Then हमने वेव लेंथ को भी डिफाइन किया था. हमने कहा था अगर एक्स एक्सिस पे आपके पास डिस्टेंस है तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स या जिसको हम कंसेक्यूटिव भी कह दिया करते थे, इट इज कॉल्ड वेव लेंथ. यानी या तो मैं एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के दरमियान का सेपरेशन निकाल लूं, दिस इज गोइंग टू बी द वेव लेंथ, या फिर मैं एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के दरमियान की सेपरेशन निकाल लूं, दिस इज गोइंग टू बी अ वेव लेंथ. एंड आई कैन ऑल्सो गो विद दिस वन, द अनकॉमन पॉइंट. मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान सेपरेशन निकाल लूं बिकॉज दे आर एडजेसेंट पॉइंट्स. इनके दरमियान की सेपरेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी टर्म्ड एज वेवलेंथ. एंड आप कोई भी दो पॉइंट्स चूज कर लो एडजेसेंट, बीट ट्रफ, क्रस्ट और एनी अदर पॉइंट, वेवलेंथ की वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन सेम. एंड देन फिर हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में पढ़ा था. हमने कहा था एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हुई एक सर्टेन पॉइंट से, उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं. यानी इफ आई से अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज, दैट मींस इस पॉइंट से एक सेकंड में 20 बार कंप्लीट वेव्स पास हो गई हैं. यानी 20 बार क्रस्ट और ट्रफ कलेक्टिव आकर गुजर गया है वहां से. एंड टाइम पीरियड ऑन द अदर हैंड इज एक वेव को एक सर्टेन पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगा. एंड हमें इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पता हो तो हम उसको रेसिप्रोकेट करके कोई भी दूसरी वैल्यू निकाल लिया करते थे. डू वी हैव एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? So sorry, Bete. Can any one of you please let me know when did I leave? Because I just saw like 10 seconds ago that I left. Like I left the meeting at 7 minutes, or it's been 7 minutes since I left the meeting. 7 minutes ago, I left the meeting. Okay, okay. Then wait, just I have my mobile phone right next to me. As soon as I go offline, please drop me a message in the group. Okay, so starting again, क्लास में जो हमने recent discussion किया था उसमें we had agreed that wave transfers energy from one point to the other without transferring of material medium, right? The particles of mediums may oscillate to and fro if it is a longitudinal wave, or up and down जिसको हम sideways भी कहते हैं if it is a transverse wave. However, it is the energy that transverses or travels from one point to the other. हमने दो तरह की वेव्स पढ़ी थी. हमने मीडियम के हिसाब से जब इसको कैटेगराइज किया था तो वी सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स. वी हैव मैकेनिकल वेव्स एंड वी हैव ट्रांसवर्स वेव. मैकेनिकल बेटा वेव, आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं कि नहीं?
कर रही हूँ मैं, लेकिन आई डिड नॉट प्रेजेंट एनी सच थिंग, बट मैं अपनी तरफ से खैर प्रेजेंट कर रही थी. लेट मी रिप्रेजेंट इट. So transverse waves and mechanical waves. Mechanicals are the ones which need medium particle for their propagation, right? एंड इसीलिए हम पढ़ते थे कि साउंड वेव्स क्योंकि मैकेनिकल वेव्स होती हैं, दे रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मीडियम. सो स्पेस में जो भी हमारे पास फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ ब्लास्ट, राइट? सो हम तक उसकी एनर्जी जरूर आ जाती है लाइट के फॉर्म में, बट वी आर अनेबल टू हियर उसका साउंड. व्हाई? बिकॉज इन बिटवीन वी हैव वैक्यूम, एंड वैक्यूम इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ मीडियम. एंड क्योंकि साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्स मीडियम, इसीलिए वो वैक्यूम से ट्रांसफर नहीं होती, वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती वो. मैकेनिकल के मुकाबले में जो हमारे पास दूसरी काइंड ऑफ या द कैटेगरी ऑफ वेव्स है, दे आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स, या जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी खास तौर पे कह देते हैं. These are the ones which can travel through medium as well as through vacuum, right? तो जनरल डिस्क्रिप्शन तो हमने यहाँ की पढ़ी थी, एंड देन हमने क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसके बेसिस पे हम वेव्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इट इज इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेशन एंड द प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिसको हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते थे. We are going to discuss उसकी proper definition as well, but moving towards the point which I am trying to make is, even if it is longitudinal or transverse wave, the properties, that is the representation of wavelength, the amplitude, the time period, they remain the same. And in order to make it convenient for us, the examiner always stresses कि अगर आप longitudinal wave की बात कर रहे हो या आप transverse की भी बात कर रहे हो, we are going to present the wave in this form. And therefore we have an MCQ in the book which says कि अगर मेरे पास wave की representation ये है, तो can you tell me if it is a transverse wave or a longitudinal wave? No. Because ये जो हम ग्राफ बनाते हैं, this is just to represent the amplitude and wavelength. This just does not certify in any way कि जिस wave की हम बात कर रहे हैं वो हर हाल में transverse ही है. Clear? हमने इन waves के लिए कुछ basic terminologies भी पढ़ी थी, which the examiner very clearly asks you to write. And considering कि हमारे पास A levels में underlined terminologies होती है, you have to mention that a specific word in order to score the mark. I've listed the definitions here. When it comes to displacement, medium particle, किसी भी एक particle को आप consider कर लें, ये है उसकी undisturbed position. किसी भी certain पॉइंट पर वो पार्टिकल अपनी अनडिस्टर्ब्ड या मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, उसे हम बस उसकी डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन. लेकिन if the examiner is asking you to mention amplitude, amplitude has to be the maximum displacement from the mean position or from the undisturbed position. जो बच्चे कॉमन गलती करते हैं क्वेश्चन में, इट इज अगर एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको लेबल करके दे दिया इट इज 2.0 एंड दिस इज आल्सो 2.0 सेंटीमीटर्स, एंड वो आपसे कहते हैं एम्पलीट्यूड निकालो, कॉमन मिस्टेक वी डू इज हम पीक से शुरू करके ट्रफ पे उसको एंड करते हैं, हम कहते हैं 2 + 2 the amplitude is 4 centimeters. That is not what we are supposed to do. You have to find the displacement from the mean position till either of the peak. Either you find ये वाली separation or you find ये वाली separation. This would be the amplitude. Let me see if we are here. Okay, we are here. Then the next terminology we had discussed was the wavelength. Wavelength को हम describe कैसे करते हैं? It is the distance between two adjacent points on a wave oscillating in step with each other. Two adjacent point, let's say this point is adjacent to this point. This point is considered adjacent to this point. And इसी तरह this point will be considered adjacent to this point. So आपने
कोई भी दो एडजेसेंट पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन फाइंड आउट कर लेनी है। So, इसीलिए वेवलेंथ को हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर देते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू troughs, और generally हम कह देते हैं it is the distance between two adjacent points because it does not necessarily have to be the separation between two crusts or only two troughs. कोई भी दो adjacent point उनके दरमियान की separation, consecutive adjacent points उनके दरमियान की separation जो है it gives us the wavelength. फिर जो हम next terminology पढ़ते हैं it is time period. It is time taken for one complete oscillation of a point in a wave. जब हम 11 में डिस्क्राइब करते थे तो हम कहते थे it is the time which one wave takes to pass. लेकिन जब हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है तो हमें बताना है कि एक पॉइंट को एक कंप्लीट ऑसिलेशन देने में, यानी वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब होता हुआ ऊपर जाए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी पीक पे चला जाए, फिर वो पॉइंट वापस नीचे आना शुरू हो, मीन को क्रॉस करे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, ट्रफ पर पहुंचे, एंड देन ऑल द वे वापस अपनी मीन पोजीशन पर आए. दिस इज वन साइकिल. एक पॉइंट को ये कंप्लीट साइकिल देने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं. And of course, since it is time period, it has to be measured in seconds. And once we know the time period, all we have to do is we reciprocate it. That is, inverse ले लो आप उसका. You'd be able to find frequency. While time period is एक wave कितनी देर में pass हुई, frequency is एक second में कितनी wave pass हुई. When I say किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, इट मीन्स कि एक सेकेंड में किसी गिवन पॉइंट से टोटल 10 वेव्स पास हो रही हैं, यानी 10 एंटायर साइकिल्स ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, गोइंग टू क्रस्ट, कमिंग बैक टू मीन, देन गोइंग टू ट्रफ एंड देन कमिंग बैक टू मीन पोजीशन. Are we clear with these terminologies? Okay, now let's move towards assimilation. Now that we have known कि pulse भी हमारे पास एक jerk है जो up and down travel करता है, और हमारे पास wave is just the propagation of energy, particle अपनी जगह पर रहता हुआ oscillate करता है. इसी को further reinforce करने के लिए I have this visual representation right here. It is an interactive simulation that is available on School Hub as well, or you can directly write on Google the simulation, the interactive simulation for wave. They bring you to 3-4 simulations. One of them is this, right? The first is manual, but let's not go for manual. Let's start with a pulse, right? At one end, we have an oscillator or a pulse generator, which is going to create a disturbance. एंड देन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे मैंने बस लेट्स से ये रोप थी तो मैंने उस रोप को बाउंड करके रखा है. क्लियर? सो वी हैव फिक्स्ड एंड एंड दूसरे एंड पे मैंने एक पल्स जनरेटर लगा दिया है. मैं अपनी मर्जी के एम्पलीट्यूड की पल्स जनरेट कर सकती हूँ. इट इज हियर. मैं अपनी मर्जी की डैम्पिंग और टेंशन इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ. डैम्पिंग इज जस्ट डाइंग आउट ऑफ पल्स. लेकिन we are not going to discuss damping, neither tension nor pulse width, because these are not our objectives and neither are they included in your syllabus, right? We have to just see oscillation of particle. Pehle, can any one of you please confirm if the simulation is visible to you? जी मिस दिख रही है. Okay, okay. So let's generate a pulse and meanwhile आपका जो main focus होना चाहिए, it should be on these points. ये वाले जो ब्लू वाले पॉइंट्स है ना, किसी भी एक ब्लू पॉइंट को अपना फोकस बना लें एंड जस्ट सी कि वो ब्लू पॉइंट कैसे मूव कर रहा है. क्या वो टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट जा रहा है वेव के साथ, पल्स के साथ, या वो सिर्फ अपनी जगह पर रहते हुए अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है, राइट? एंड उसके अलावा एक चीज लेट्स एस्टेब्लिश राइट हियर, द पल्स इज गोइंग टू बी नथिंग बट अ जर्क, राइट? इट्स लाइक आपने एक एंड से रस्सी को या स्प्रिंग को पकड़ के अप एंड डाउन उसको एक झटका दिया है आपने. So it is vertical oscillation. It is transverse wave that we are going to produce here. So see, a pulse is generated. Let's slow it down. Do we have an option to slow it down?
Why are they not giving us an option? Chalein, let's just see the pulse here. See the particle, the blue one, it displaced from its mean position, but it did not move right or left. See the oscillation? किसी भी एक blue point को focus कर लें. That is the particle. जब आप उसको वर्टिकल दैट इज ट्रांसवर्स वेव प्रोवाइड कर रहे हो, पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से ही अप एंड डाउन मूव कर रहा है. सो पार्टिकल इज मूविंग अप एंड डाउन एंड द एनर्जी इज ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम द सोर्स दैट इज टुवर्ड्स राइट. That is the representation of a transverse wave, जिसको we define as when the oscillation is perpendicular to the direction of propagation of wave. This type of oscillation is called, this type of wave is called transverse wave. You can increase the amplitude. You can decrease the amplitude of wave. Increase it gradually. पार्टिकल जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम जहां डिस्प्लेस हो रहा था, अब वो बढ़ती जा रही है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. सी एंड इसी तरह नाउ दैट वी हैव हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वेल. अब इस एक पॉइंट को कंसिडर कर लें. अगर मैं कहूं कि वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब है एक सेकेंड में ये वाला पॉइंट कुछ ना कुछ कम नंबर ऑफ सर्टेन ऑसिलेशंस दे रहा होगा. एंड जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो उसी एक सेकेंड में इसी फिक्स पॉइंट को पहले के मुकाबले में ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस देनी चाहिए. लेट्स सी इफ दिस इज द केस. See, did the oscillation become more rapid? Yes, it did. That is because मैंने यहाँ से उस वेव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है. ऑफ कोर्स मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव जनरेटर इंक्रीज की एंड जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी थी, फिर कनेक्टिंग मीडियम में उसी सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट हो गई है. You decrease the frequency, the oscillation of the particle gets slowed down. Do we have any confusion यहाँ तक? Do we have any confusion? Okay. The basic terminologies हमने पढ़ ली. Basic unit हमें पता है. Frequency is measured in hertz, time period in seconds, displacement हो या amplitude हो या wavelength हो, because वो kind of distances हैं, इसीलिए we always measure them in meters. If the examiner has provided you any of these terminologies in any unit other than the standard, तो आपने उसको ऑफ कोर्स कन्वर्जन फैक्टर लगाकर कन्वर्ट करना है, अपने स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर आना है एंड देन यू प्रोसीड विद जो भी आपकी आगे की वर्किंग है. अभी तक हमने बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो पढ़ दी, बट आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी जो हम 11 में नहीं थे पढ़ते उतना डिटेल में. इट इज कॉल्ड द फेज या फेज डिफरेंस. What is phase difference? The phase difference tells us how much a point or a wave is in front or behind the other. पहले phase difference consider कर लेते हैं, एक ही वेव के दो पॉइंट्स के दरमियान का फेज डिफरेंस. फिर उसके बाद देखेंगे दो वेव्स के दरमियान का फेज डिफरेंस क्या होता है. इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट देन द पहली वाली अप्रोच, बट लेट्स स्टार्ट विद द पहली वाली अप्रोच. This figure right here shows multiple waves, right? जब हम ऑसिलेशन की बात करते हैं, लेट्स से मैं एक सिंपल पेंडुलम की या मैं स्प्रिंग मास सिस्टम की ऑसिलेशन की बात कर रही हूँ. पेंडुलम कंसिडर करें, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन. एक ऑसिलेशन हम किसे कहते हैं? When pendulum goes to one extreme, it comes back to the mean position, then it goes to the other extreme, and then it comes to the mean position. मैं इसको कहती हूँ एक ऑसिलेशन या मैं इसको एक साइकिल भी कहती हूँ, राइट? इसी तरह जब आप वेव के टर्म्स में बात करो, सी पेंडुलम की तरह स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम मीन, इट वेंट टू वन एक्सट्रीम पोजीशन, it came back to the mean position,
then it went to the other extreme position, and then it came back to the main position. This is one complete cycle. This is one complete oscillation. इसकी लेंथ को हम वेव लेंथ का नाम देते हैं, इसके पीरियड को हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं, एंड क्योंकि हम इसको रिलेट कर रहे हैं एक साइकिल से, एक साइकिल में एंगल इज 360 डिग्री, इसीलिए हम हमेशा एक वेव के पीरियड को 360 डिग्री का नाम देते हैं. दैट इज, अगर मैं ये यहां पर वेव बनाऊं तो आई वुड से दिस वाज 0 डिग्री एंड दिस राइट हियर इज 360, बिकॉज ये एक कंप्लीट रोटेशन हो गई उस पार्टिकल की, ये एक कंप्लीट सर्कल यानी एक कंप्लीट राउंड ले लिया उसने, वो जहां से शुरू हुआ था ऑल दी वे घूमकर वो वापस वहां पर आ गया है. सिर्फ हम ये एनालॉजी बना लेते हैं कि एक वेव फिर यकीनन 360 डिग्री पर स्पैन करती है, और फिर हम इसको मजीद ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं. इफ दिस एंटायर सेपरेशन इज 360 तो राइट इन बिटवीन क्या होना चाहिए? इट शुड बी 180 डिग्री. If this entire separation is 180 degree, तो right in between क्या होना चाहिए? It should be 90. If this is 180 degree, right in between क्या होना चाहिए? The difference of 90 degree. यानी if it was 180, so this right here should be 270 degree. Now that we know कि एक complete cycle पे आप एंगल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये मुझे पता चल गया. इस वेव की कंप्लीट लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ. यहां तक वाले रीजन को हम क्या नाम देंगे? रिमेंबर वी अग्रीड दिस वुड बी लैम्डा बाय 2 बिकॉज दिस इज हाफ ऑफ वेव. इसको मैं क्या नाम दूंगी? दिस वुड बी लैम्डा बाय 4 बिकॉज दिस इज क्वार्टर ऑफ वेव. इसको मैं क्या नाम दूंगी? दिस वुड बी 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4. रिमेंबर वी अग्रीड, बिकॉज एक कंप्लीट वेव का अगर मैं 4 पोर्शंस कर लूं तो यहां तक उसमें से 3 पोर्शंस पास हो गए हैं एंड द फोर्थ इज ओनली लेफ्ट. सो मैं एक कंप्लीट वेव को वेवलेंथ यानी लैम्डा के टर्म्स में भी उसका फ्रैक्शन बना सकती हूँ. एंड अब इसी तरह नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड एंगल जिसको मैं फेज का नाम देती हूँ, तो मैं उसी को फेज यानी एंगल के टर्म्स में भी मेंशन कर देती हूँ. Now, how does the examiner ask questions from any such topic? Examiner आपसे कहेंगे कि ये मैंने यहाँ पर फिगर में आपको 2 पॉइंट्स बना कर दिए हैं, आप मुझे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का फेज डिफरेंस बताओ. यानी in total of 360 degree, how many degrees they are apart? Or in total of one wavelength, which fraction of wavelength they are apart? So any one of you who can tell me what is the separation or what is the phase difference in degrees between these 2 points A and B? चले भाई comment down जल्दी से. Or should I ask targeted questions? Miss 180 degree. Yes, it is 180 degree. Very good. Yes, Arup, it is 180 degree. And Faiz, bete, you tell me in terms of wavelength. Wavelength के terms में इसके दरमियान separation कितनी है? Is it 1/4 lambda, 1/2 lambda, 3/2? Miss 1/2 lambda. It is 1/2 lambda. Yes. And remember, सर्कल मैथ्स में जब आप लोग पढ़ते हो तो आप उसमें पढ़ते होगे कि 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियंस. ऐसे ही पढ़ते हैं आप? जी. यस. सो अब अगर मैं कह रही हूँ कि ये 360 का बिल्कुल हाफ है, तो इन रेडियंस कैन आई से कि दीज 2 पॉइंट्स आर पाई रेडियंस अपार्ट. Yes, they are pi radians apart, and that is what I've mentioned यहाँ पर. You can either mention the phase difference in terms of wavelength, you can mention it in terms of fraction of 360 degree, you can mention it in terms of fraction of 2 pi. जो अभी हमने पिछली एग्जांपल देखी थी A से B वाली, हम कहते हैं in terms of wavelength those 2 points were lambda by 2 apart. In terms of degree, those 2 points were 180 degrees apart. And in terms of radians, those 2 points were pi radians apart. ये तो हमने देख लिया एक ही वेव में
दो पार्टिकल्स के दरमियान का फेज डिफरेंस. बट द एग्जामिनर डज नॉट स्टॉप हियर. दे से कि आपको दो वेव्स को भी इन टर्म्स ऑफ देयर फेज कंपेयर करना आना चाहिए, which we are going to understand through this figure right here. We have two waves, one is traced in green and the other is traced in purple. The very first thing we are going to do is ये जो तीन चार वेव के ऊपर ये हमारे प्री डिफाइंड पॉइंट होते हैं ना, जैसे मीन पोजिशन, पीक, ट्राफ, इनके फेजेस मेंशन कर देते हैं. For green, let's go with green. Starting point, what did we agree? It would be 0 degree. The peak would be 90 degree. This point again would be 180. The opposite peak is going to be 270 and then back to the mean position is going to be 360 degree. ये मैंने चार पॉइंट्स मेंशन कर दिए. ग्रीन वेव का मैंने फेज मेंशन कर दिया, नॉट द फेज डिफरेंस. मैंने ग्रीन वेव का फेज मेंशन कर दिया. नाउ I am going to mention the phase for the other wave as well and then I'll find the difference. Let's do with red for the other wave. What is this? This is 0 degree. What is going to be this? This is 90 degree because it is positive peak. While going from positive to negative, when the wave crosses the mean position, yeah, the undisturbed position, that is where we write 180 degree. The opposite peak is always 270 and back to the mean position is always 360, जिसको हम 0 degree for the next cycle भी कह सकते हैं. Now, मैंने दोनों waves के लिए phases mention कर दिए. आप कोई भी एक common point consider करें, be it crust, be it trough और be it mean position. And उसमें से किसी भी एक fix point पे दोनों waves के phases को compare कर लें. Let's go with this point. This is our point जिस पे हम compare करने वाले हैं. Clear? At this point, the purple wave has 0 degree phase, while the green wave has 90 degree का phase. So can we comment that the difference between their phases is 90 degree? किसी दूसरे point पे भी आप compare कर सकते हो. Let's say if you go with this one, the green one is at 180 degree, while the purple one is at 90 degree. There is a difference of 90 degree between these two phases. You can do the same for this point. You can do the same for this point. The difference will remain 90 degree तब तक जब तक दोनों waves की frequency same है. हाँ, अगर आप किसी different frequency वाली दो waves को इस तरह consider करोगे तो phase difference हर point पर constant नहीं रहेगा. But again, difference frequency की waves are not included in our learning objective, so we need not to care about वो वाले scenarios. पहली बात कंफर्म हो गई, हमने एस्टेब्लिश किया दोनों वेव्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस है इट इज 90 डिग्री. देन अगर मुझे स्पेसिफिकली लेबल करना हो कि इसमें से कौन सी वेव जो है वो आगे है, कौन सी वेव पीछे है, इट इज मेंशन्ड हियर. लैगिंग बिहाइंड विल यूज द वर्ड जब कोई वेव पीछे रह रही है, राइट. सी, phase difference tells us how much a point or a wave is in front or behind another. This can be found from the relative positive of the crust or positions of the crust or troughs of two different waves of the same frequency. When the crust or trough are aligned, the waves are in phase. यानी let's say मेरे पास एक wave थी ये and then इस पे superimpose हुई एक दूसरी wave एंड वो भी सेम ऐसे ही ट्रेस हुई, यानी दोनों के क्रस्ट भी अलाइन हो रहे थे एंड दोनों के ट्रफ्स भी आपस में अलाइन हो रहे थे. तो मैं कहूंगी कि दोनों वेव्स के दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है. फेज डिफरेंस इज 0. वाइल ऑन द अदर हैंड अगर एक वेव ये प्रेजेंट थी मेरे पास एंड जो दूसरी वेव थी इट वाज दिस, यानी एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से अलाइन हो रहा था. So that is when we would say that there is a difference of 180 degree between these two waves. या pi radian का difference है between these two waves. And इसके लिए exact 180 degree के लिए हम anti phase का word use करते हैं. Whenever there is a difference of 180 degree, we say that the waves are anti phase.
Do we have any confusion in waves exactly being in phase? इसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं, कभी कभी 360 भी लिख सकते हैं, because we never know, maybe पहली यहां से स्टार्ट हुई थी, जबकि जो दूसरी वेव थी, लेट्स से ये रही मेरे पास पहली वेव, एंड जो दूसरी वेव थी वो यहां से स्टार्ट हुई थी। सी, सो देयर वुड स्टिल हैव बीन, एक वेव पूरी गुजर गई थी ना, तो 360 का डिफरेंस था, लेकिन वी डू नॉट गेट इनटू दिस। ऐसे तो मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स का डिफरेंस आ सकता है, 1 टाइम्स 360, 2 टाइम्स 360, 3 टाइम्स 360, तो हम जनरली उसको फिर 0 डिग्री कह देते हैं जब भी दोनों का क्रस्ट आपस में, इन दोनों का ट्रफ आपस में ओवरलैप कर रहा होता है। इस केस में हम कमेंट क्या करेंगे, हम कहेंगे द ग्रीन wave is leading the purple wave by 90 degree, because जब पर्पल का 0 था, ग्रीन का ऑलरेडी 90 था, जब पर्पल का 90 था, ग्रीन का ऑलरेडी 180 था, सो ग्रीन इज 90 डिग्री अहेड ऑफ पर्पल, और पर्पल वेव इज लैगिंग बिहाइंड ग्रीन वेव by 90 degree, or by 1/4 of wavelength, or by pi by 2 radians. Do we have any confusion यहाँ तक? Are we clear with phase difference? एक सिंगल वेव के अंदर भी, एंड अगर मुझे दो अलग अलग वेव्स के फेज डिफरेंसेस को कंपेयर करना हो तो उसके हवाले से भी। Rayan बेटे, do you have a confusion? Rayan Ahmed? No. Do we have Kab in this class? We don't have Kab here. Faiz बेटे, do you have a confusion? नहीं मिस। Meerab बेटे, is it making sense? Yes, ma'am. Aroop? Okay. And Rayan Ali? No, miss. Okay. Now, then the next learning objective we have is the one we had very briefly seen in class as well, but आपके learning objective का part है, you are supposed to be able to derive this equation जिसको हम wave equation का नाम देते हैं. This is V is equals to F lambda. So in case the examiner asks you to derive this equation for let's say 2 marks, you have to start with आपको wave की speed की derivation करनी है ना. So you would first write that speed is distance traveled per unit time. आपको वेव की स्पीड निकालनी है. नेक्स्ट यू वुड मेंशन फॉर वन वेव distance traveled by one wave is wavelength, and the time taken for one wave to travel is time period, which is represented with capital T. And putting these two values in the equation of speed, speed should equal wavelength divided by time. And since we can see that in this equation, we do not see time period here, we see frequency here. So we can simply replace time period with its equivalent of frequency. Speed के लिए we are going to write V, wavelength as it is. इस time period को हम अलग से 1/t लिख सकते हैं. And then in next step, we are going to simply replace it with F, because we know that inverse of time period is frequency. This is what we have derived. नाउ आप कोई पास पेपर का जब क्वेश्चन देखेंगे, अगर उन्होंने स्पीड आपको सेंटीमीटर्स पर सेकंड में दी है एंड वो आपसे कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी निकालें, तो यू नीड टू मेक श्योर कि या तो आप इस स्पीड को मीटर्स पर सेकंड में ले जाएं, या फिर जो वेवलेंथ आपको मीटर्स में गिवन है आप उसको सेंटीमीटर्स पर सेकंड में ले जाएं. समथिंग वी हैव बीन लर्निंग सिंस द गेट गोइंग, राइट से वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम 11, राइट. सो यूनिट की कंसिस्टेंसी जहन में रखते हुए यू हैव टू डिराइव or calculate the final answer. Velocity standard would be measured in meters per second when the wavelength is placed in meters and the frequency is placed in hertz, which is equivalent to inverse of second. 5 hertz is equal to 5 second inverse. 10 hertz is equal to 10 second inverse.
एंड हर बार एग्जामिनर ऑफ कोर्स आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे, समटाइम्स दे may provide you with the graph, and उस ग्राफ से आप अपनी जो भी required information उसको extract करोगे, you would put the values in the equation and you would find the final answer. जैसे the work example that we have here, it says speed is 340 meters per second and इन्होंने मुझे वेव स्केच करके दे दी एंड मुझे कह रहे हैं कि आप वेवलेंथ फाइंड आउट करो। वेवलेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, स्पीड इज गिवन टू बी 340। तो अगर मुझे इस ग्राफ से किसी तरह टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो मैं निकाल सकती हूँ। एंड सी द सेपरेशन along x-axis which they have labeled as time not distance from one trough to the other trough yani from between two adjacent points is given। तो एक एडजेसेंट पॉइंट से दूसरे एडजेसेंट पॉइंट ऑफ वेव तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, दिस इज टाइम पीरियड, यानी इन्होंने मुझे टाइम पीरियड दे दिया है। बट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर, टाइम पीरियड इज नॉट गिवन इन seconds, it is given in milliseconds। हालांकि speed was given in second, do not confuse this m for milli, this is for meter। एंड ये आपको समझ तब भी आ जाता है, रिमेंबर जब हम यूनिट्स के कन्वेंशंस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि दो यूनिट्स के दरमियान हमेशा स्पेस होती है एंड एक यूनिट और एक प्रीफिक्स के दरमियान कभी भी स्पेस नहीं होती। सो इन केस यू हैड अ कंफ्यूजन कि दिस इज मिली सेकेंड, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए देयर इज नो फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर इनटू सेकेंड है, सो इट हैज टू बी मिली सेकेंड। एंड इन केस फिर भी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश है तो ये जो स्पेस वाली हमारी कन्वेंशन है इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज मिली सेकेंड एंड दिस इज मीटर्स पर सेकेंड। तो मुझे यहाँ से समझ में आया, अगर मैं स्पीड को मीटर्स पर सेकेंड में यूज करूंगी तो मुझे टाइम को मिली सेकेंड के बजाय सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो ऑल आई हैव टू डू इज मिली की जगह उसका फैक्टर लगा दें विच इज नथिंग बट 10 की पावर -3। Now the time has been converted into second. You put it in equation v is equals to f lambda या lambda by t in our case and आपको rearrange करने के बाद wavelength की value पता चल जाएगी। क्योंकि this was a very basic question जो हमने 11 में भी बहुत सारे किए, I have attached 3 sample questions here. In each question, you have been provided with the numerical value of any two physical quantities out of these three, and then उन्होंने आपसे तीसरा पूछ लिया। All you have to do is just start the equation of wave. You rewrite the equation to make the unknown the subject, and then you put in the values, you get the final answer. Do we have any confusion here? If I leave these 3 questions here, is there anyone who feels like they would not be able to calculate the final answer? All of you would be able to calculate the final answer? Okay, I take it as everyone would be able to calculate it. Try it, and if you still feel like you are unable to, feel free to let me know. The next is topic that is very basic but is part of our learning objective is CRO. What is CRO? CRO is a device that looks like this. It is named cathode ray oscilloscope. Cathode is for the word प्रैक्टिकल में आ सकता है ये? practical में no, cathode ray oscilloscope is not a part of your practical. We had agreed कि practicals में वो आपको resistors, capacitors, battery, वायर्स ये वाली सारी चीजें देंगे, कंपोनेंट होल्डर्स या वो उन्होंने वुडन बेंच के ऊपर एक वायर रेजिस्टर लगा दी, ये वाली चीजें आपको देंगे। या उसके अलावा वो मैकेनिक्स में आपको स्प्रिंग, पेंडुलम, वेट स्केल, वेज और वाटर ये वाले एक्सपेरिमेंट्स आपको देंगे। ठीक, so far cathode ray oscilloscope has never been a part of learning objective, and जहाँ पे इन्होंने वो मेंशन भी किया ना apparatus जिससे आपके आ सकते हैं learning objectives इसके P3 के, उसमें it is not there. So no, cathode ray would not be part of your P3. Cathode ray oscilloscope जिसको हम CRO का भी नाम देते हैं, what does it do? Cathode ray oscilloscope presents the input in the form of alternating signal. एंड क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर पिक्चर में हमें नजर आ रहा है कि ये एक वेव है,
वेव की अपनी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट करता है सामने? सोर्स की फ्रीक्वेंसी। जैसे इन दिस केस हमने क्या किया, हमने ट्यूनिंग फॉर्क विच इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसको आप स्ट्राइक करो तो वो एक वाइब्रेशन, एक साउंड जनरेट करता है। इस केस में कैथोड रे उस साउंड वेव्स के लिए सामने एक ग्राफ स्केच करके दे रहा है, जिस ग्राफ से वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ sound wave. Let's first go through the description and then we will solve two practice questions from this topic. From cathode ray oscilloscope, you can measure the frequency of sound wave. In this figure, you can see that we have a microphone here just to amplify the sound because जो vibration produce होती है वो बड़ी faint सी होती है. So we have used a microphone which is going to amplify this input and then मैंने इस microphone के input को सी connect किया है cathode ray के साथ, cathode oscilloscope के साथ. So it is going to take this vibration, this energy as an input and it is going to display it in the form of transverse waves so that we can identify the amplitude as well as the frequency. Microphone converts the sound wave into varying voltage that has the same frequency as the sound wave. Voltage is displayed on CRO screen. It is best to think of CRO as a voltmeter that is capable of displaying a rapidly varying voltage. And ये वेरिएशन हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं. अब स्क्रीन पे हमारे पास डिस्प्ले आ रहा है. डिस्प्ले में ऑन वाई एक्सिस वी हैव वोल्टेज जिसको हम वाई गेन भी कहते हैं. टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान दीजिएगा, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में वाई गेन का वर्ड खास तौर पे मेंशन है. सो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में वाई एक्सिस पे हमारे पास आता है वोल्टेज जिसको हम वाई गेन का नाम देते हैं एंड ये हमें बताता है उस वेव का एम्पलीट्यूड. इसी तरह कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम बेस एंड क्योंकि मुझे टाइम पता है उससे मैं टाइम पीरियड निकाल कर फिर इन्वर्स करके फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स फाइंड आउट कर सकती हूँ. क्लियर? सो इट डिस्प्लेस वाई और एक्स एक्सिस के टर्म्स में और फिर मैं सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी उसकी वेव प्रॉपर्टीज हैं, उसका एम्पलीट्यूड, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी वो फाइंड आउट कर सकती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. This is the example from your book and this one is the example from the Cambridge endorsed notes, that is Save My Exams. So starting with the easier one, we have worked example here. It says the figure shows the trace on an oscilloscope screen when sound waves are detected by a microphone. मैंने फिर कोई वाइब्रेशन जनरेट की, उस साउंड को मैंने oscilloscope पे प्रोजेक्ट करवा दिया. Are we here? Okay, we are here. Then the time base x axis को remember मैंने कहा हम time base भी कहते हैं. Time base is set at 1, see there is no separation, 1 millisecond per division. ये है एक division along x axis, ये है एक division along y axis. So ये इसे एक small box को एक division का नाम देते हैं. क्वेश्चन में इन्होंने आपको बता दिया है कि ये जो हमारे पास division है along x axis along time base, it represents 1 millisecond. Okay, so it is 1 millisecond. And the y gain यानी जो y axis है हमारे पास, it is set to 20 millivolt per division. यानी ये जो y axis है एक division represent कर रहा है 20 millivolt को. अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल के दो और आप मुझे सोर्स का एम्पलीट्यूड भी निकाल के दो. एम्पलीट्यूड के लिए अभी वी अग्रीड, व्हाट विल वी फाइंड? वी विल फाइंड सेपरेशन फ्रॉम मेन पोजीशन टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अब मुझे y एक्सिस इन्होंने लेबल करके नहीं दिया तो मैं फाइंड आउट करूंगी नंबर ऑफ डिविजन्स और फिर मैं उन नंबर ऑफ डिविजन्स को ट्रांसलेट कर लूंगी कि ये किसके बराबर बनता है. जैसे यहाँ पे I'd say along y we have 1 division, 2 division, 3 division and then 3.5 division.
सो 3.5 डिविजन्स, एम्पलीट्यूड किसके बराबर है? इट इज इक्विवेलेंट टू 3.5 डिविजन। एंड मुझे पता है कि 1 डिविजन इज 20 मिलीवोल्ट। दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर लूं 70 millivolt, जिसको I can also write as this. This is the amplitude of the presented wave, which will always be in terms of voltage, because cathode ray oscilloscope y axis पे volts को रख रहा है, हम volts को amplitude के terms में meters में जाकर translate नहीं करते. So whenever examiner asks you to find amplitude in such a question, you have to find y axis पे maximum displacement, which of course is always going to be in the terms of volts. Do we have any confusion here? The next we are going to do is we are going to find the frequency. And frequency के लिए on x-axis we have time base है ना हमारे पास, तो मैंने कहा time निकाल लेती हूँ एक वेव का, and then फिर मैं उसको inverse करके find out कर लूंगी frequency क्या है. बस ये फिर जो वोल्ट्स के अंदर हमारे y गेन होगा वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा. Yes, wave, because इस बार y axis पे amplitude is maximum displacement from mean position, right? And in the projected trace, the maximum displacement from mean position is equivalent to 70 millivolts. So you are not supposed to somehow relate it to meters or centimeter. No, you do not have to do this. Examiner accepts the final answer in terms of volt. ठीक है? जी मैम. Now the next we are going to do is मुझे time period चाहिए, so मैंने कहा एक वेव का टाइम निकाल लेती हूँ. दिस वुड गिव मी टाइम पीरियड. नाउ आइडियली वी गो फॉर दिस, नहीं तो अभी तक हमें समझ में आ गई है. आप इसकी सेपरेशन भी निकाल सकते हो या आप इसकी सेपरेशन भी निकाल सकते हो, हर हाल में ये टाइम पीरियड ही कहलाएगा. ठीक, सो लेट्स गो विद दिस वन. एक वेव का टाइम 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन. so time period is 4 डिवीजन. एंड मुझे पता है कि 1 डिवीजन, क्वेश्चन में ये मुझे बता चुके हैं, 1 मिली सेकेंड के बराबर है, तो यकीनन 4 डिवीजन वुड इक्वल 4 मिली सेकेंड. मेरे पास आ गया टाइम पीरियड, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो मैं बस इसको इन्वर्स कर दूं. 1 डिवाइडेड बाय 4 मिली सेकेंड. रिमेंबर आई सेड फ्रीक्वेंसी हमेशा 1/सेकेंड को रिप्रेजेंट करती है, तो मुझे मिली, माइक्रो, मेगा जो भी लगा होगा उसको हटाना पड़ेगा. 4 मिली है, मैं उस मिली की जगह उसका फैक्टर विच इज 10 रेज टू द पावर -3 वो प्लेस कर दूंगी. मिली हट गया, सिर्फ सेकेंड बच गया. नाउ द आंसर इज गोइंग टू बी इन हर्ट्ज, जिसको हम सेकेंड इनवर्स भी कहते हैं. You just divide 1 by 4 exponent -3 and you would find the final answer in frequency. This was a very basic question, जिसमें मुझे कोई conversion नहीं करनी पड़ी. अब इसी का एक स्टेप ऊपर जाकर सवाल देखते हैं जरा. A cathode ray oscilloscope is used to display the trace from a sound wave. Now time base is set to 7 microseconds per millimeter. ये आपसे कह रहे हैं कि टाइम बेस यानी अलोंग एक्स एक्सिस 1 मिली सेकेंड 1 मिलीमीटर 7 माइक्रो सेकेंड्स को शो करता है. बट मेरा मसला क्या हुआ, मेरे पास फिगर में मिलीमीटर्स के टर्म्स में नहीं है एक्स एक्सिस, वो तो मुझे सेंटीमीटर्स में बता रहे हैं. तो मुझे समझ में आई कि ठीक, कन्वर्जन मुझे इधर करने की जरूरत पड़ेगी. एंड द सेम अप्लाइज फॉर y axis as well. Y axis, अच्छा नहीं, इन्होंने y axis में मुझे पूछा ही नहीं है, so we will stick with x axis in this case. Let's start this. मुझे find out करना है frequency. टाइम बेस पता है, यानी मेरा पहला स्टेप होना चाहिए कि मैं टाइम पीरियड निकालूं, फिर मैं उस टाइम पीरियड को इन्वर्स करके फ्रीक्वेंसी निकालूं. टाइम पीरियड इज एक वेव को जो टाइम लगे, यानी इफ आई स्टार्ट एंड फाइंड सेपरेशन बिटवीन दीज. मुझे इस फिगर से नजर आया सेपरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 3 डिविजन्स. एंड इन्होंने मुझे बताया है कि 1 डिवीजन 2 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 3 डिवीजन शुड बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो मुझे पता चला टाइम पीरियड
6 सेंटीमीटर्स के बराबर है। क्या मैं ये लिख दूं? Should I write this time period as 6 centimeters? There is a difference. Time base is set at 7 microseconds per millimeter. मुझे इनका यूनिट सेम करना पड़ेगा। मैं कहूँ 7 माइक्रोसेकेंड्स पर मिलीमीटर या मैं कहूँ 70 माइक्रोसेकेंड्स पर सेंटीमीटर। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? बिकॉज मिली को जब हमें सेंटी में कन्वर्ट करना होता है, वी जस्ट डिवाइड इट विथ 10. आई मल्टीप्लाइड इट विथ 10. उल्टा काम कर लें, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें। मैं इसको लिख सकती हूँ सेंटीमीटर्स के टर्म्स में फाइंड आउट करें। बेटे एम आई ऑडिबल? Beta, can anyone please drop me a message if I'm audible? Okay. Did we make the unit same? सेंटीमीटर्स में अगर मुझे बेस गिवन है तो फिर मुझे उसका इक्विवेलेंट भी सेंटीमीटर्स में ही निकालना है। 6 सेंटीमीटर्स आ गया मेरे पास, बट मुझे डिवीजन था जो मिलीमीटर्स में गिवन था, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगी मिलीमीटर्स में। लेट मी राइट इट हियर। 6 सेंटीमीटर्स, जिसको मैं कह सकती हूँ इट इज 60 millimeters. Clear? So time period is equivalent to 7 पे अगर मेरे पास बेस सेट है, so I am going to write 7 micro and then the conversion between these two is 60. You multiply these two values and whatever you get in seconds is going to be the final answer for time period. मैंने पहले निकाला कि ये ऑन एक्स एक्सिस कितने के बराबर है, एंड देन वो जो भी ड्यूरेशन या वो जो भी डिवीजन मुझे अपने सेकंड्स के इक्विवेलेंट में गिवन था, मैंने उसमें कन्वर्ट करके अपना फाइनल आंसर निकाल लिया। बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड एंड अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारी टाइम बेस है, तो फाइनल आंसर शुड बी इन सेकेंड। जो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ग्राफ से निकालती वो मेरे पास सेंटीमीटर्स में आता, एंड जो हमें बेस गिवन था इट वाज इन मिलीमीटर्स। तो पहले तो मैंने सेंटीमीटर का इक्विवेलेंट मिलीमीटर्स में कर लिया, एंड देन इस बेस में ही मुझे ये पता था कि 1 मिलीमीटर 7 माइक्रो सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेरे पास फाइनल आंसर 60 मिलीमीटर्स है तो इट शुड रिप्रेजेंट 60 मल्टीप्लाइड जो भी यूनिट था इतने सेकेंड्स। डू वी हैव एनी कंफ्यूजन यहां तक? इज इट क्लियर? Just give me a thumbs up, anyone, or ask a question if you have it. मिस एक बार और समझा दें। ये एक बार और समझाऊं? जी मिस। ओके एहसन बेटे, ग्राफ से और anyone else who has a problem here, ग्राफ से मैं एक वेव का along x axis जो सेपरेशन है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ। इन्होंने मुझे कहा है कि टाइम बेस जो मुझे गिवन है दैट इज 7 माइक्रोसेकेंड्स पर मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर along x axis will represent 7 माइक्रोसेकेंड्स। तो मैं पहले तो निकाल लूं कि टोटल कितना डिस्टेंस है along x axis, और फिर मैं देख लूं कि उसके अंदर कितने मिलीमीटर्स बनते हैं। क्लियर? सो पहले फर्स्ट मैंने देख लिया along x axis कितने सेकेंड्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं एक टाइम पीरियड के लिए। द ग्राफ रिप्रेजेंटेड इट इज 6 सेंटीमीटर्स, द वेव इज स्ट्रेचिंग along x axis फॉर 6 सेंटीमीटर्स, जिसको मैं 60
मिलीमीटर्स भी कह सकती हूँ. एंड व्हाई डिड आई चूज टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर? बिकॉज इट वाज ऑब्वियस कि वो जो ऊपर इन्होंने मुझे टाइम डेज दिए वो मिलीमीटर्स में दिए. ये वाला मसला मुझे इस क्वेश्चन में नहीं था हुआ बिकॉज यहाँ पर इन्होंने मुझे पर डिवीजन मेंशन किया था. But unlike this question, in this worked example, they did not mention per division. एक तो इन्होंने डिवीजन के बजाय कोई दूसरा यूनिट मेंशन किया है. एंड द ग्रेटर प्रॉब्लम इज वो यूनिट दोनों केसेस में सेम है, यानी ट्रेस में अलोंग एक्स एक्सिस कोई दूसरा यूनिट आ रहा है एंड ऊपर जो डिवीजन मेंशन किया है उसके अंदर कोई दूसरा यूनिट आ रहा है. तो मुझे कंसिस्टेंसी लानी थी. तो मैंने अपना आंसर तो अलोंग एक्स एक्सिस जो भी आ रहा था वो निकाला. फिर मैंने मीटर्स एक जगह था, मिलीमीटर्स दूसरी जगह सेंटीमीटर, उसमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए कन्वर्जन की. एंड देन फिर मैंने उसको 7 माइक्रो सेकेंड्स के लिए कॉम्पनसेट कर लिया. आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 60 एंड ऊपर इन्होंने आपको बता दिया, यहाँ आपके पास आंसर आया 60 डिवीजन एंड ऊपर इन्होंने आपको बता दिया था कि 1 डिवीजन इज इक्वल टू 7 माइक्रो सेकेंड्स. So you just multiply it and you'd get the final answer. So इस केस में you just treat millimeter as a common unit. जैसे यहाँ पर डिवीजन था, यहाँ पर आपके पास मिलीमीटर कंसिडर हो जाएगा. Is it making any sense to you? जी मिस समझ आ रहा. Okay, then the very basic thing that we had started, but kyunki it is written word to word in learning objectives, so I have pasted a text here and फिर उन्हीं notes and आपकी A levels की जो book है उसमें से I have pasted a few pictures here. दो टाइप्स हैं वेव्स की हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल भी है, ट्रांसवर्स भी है. बट हमने अग्री किया था कि आप हमेशा वर्टिकल रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज हाउ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ अ ट्रांसवर्स वेव लुक्स लाइक. आप एक स्प्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर सकते हो एंड इवन एक रोप के अंदर भी. कैसे? यू जस्ट हैव टू वैगल और यू जस्ट हैव टू जर्क द एंड ऑफ द स्प्रिंग और रोप अप एंड डाउन, जिसके लिए साइड टू साइड का वर्ड यूज हो रहा है. अलोंग जेड एक्सिस भी आप कर सकते हो. द सेगमेंट ऑफ द स्प्रिंग या मूव या रोप विल मूव एज द वेव ट्रेवल्स. सी, आपने जो जर्क दिया है इट इज अलोंग वाई एक्सिस and the wave is traveling, the vibration, the pulse is traveling away from the source, that is this hand, towards right. So the movement of energy is towards right and the vibration was along y-axis. These two are perpendicular to each other and that is precisely how we define a transverse wave. Transverse wave is the wave in which the transfer of energy and the vibration are mutually perpendicular to each other. And इसके लिए हमारे पास फिर representation भी कौन सी होती है? We go with this one, जिसमें the separation between adjacent point is wavelength, this is amplitude and so on. जो हमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो पूछ ले, आई डिड नॉट सी इन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू एग्जाम्पलीफाई द टाइप्स ऑफ वेव, बट फर्स्ट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसवर्स वेव में वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग रेडियो, माइक्रो, इनविजिबल, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे. एंड इस रोप पर जो वेव है इसको भी आप एग्जांपल दे सकते हो, वेव जनरेटेड और वेव क्रिएटेड ऑन अ रोप and vibration of guitar strings, water waves, they are all transverse waves. The next we have is longitudinal wave. इसी केस में वो आपसे कह रहे हैं अगर आपके पास एक स्प्रिंग है एंड आप उस स्प्रिंग के एंड को बैक एंड फोर्थ मूव करो, यानी स्ट्रेच और कंप्रेस करो, तो you would see the regions where the medium particles are closer to each other, जिसको हम कहते हैं medium of high pressure और the region of high density. इसको हम कंप्रेशन का नाम देते हैं. एंड देन ऑल्टरनेट रीजन्स बनेंगे विद अ सर्टेन रीजन जिसमें पार्टिकल्स आर फार्दर फ्रॉम ईच अदर. दिस इज द रीजन जिसमें हम कहते हैं प्रेशर कम है या डेंसिटी कम है एंड इस रीजन को हम रेयरफेक्शन का नाम देते हैं. So like in transverse wave we have repetition of crust and trough. In longitudinal wave we have repetition of compression and rarefaction. This is how we are representing it. The medium particle, yani the particle of a spring, they are moving along x-axis to and fro, and energy is also being transferred towards the right. So the motion, yeah, the oscillation of particle
and the direction of traveling of wave, they are the same, they are parallel. So we would categorize this type of wave as longitudinal wave, जिसको आप describe ही कैसे करते हो, आप define करते हो कि the longitudinal waves are the waves in which the wave travels in a direction parallel to the direction of vibration of particles. That is the longitudinal wave. And in terms of compression, see, closer together region आ गया, high dense region and rarefaction. Why did I mention it here? Because past paper के एक question में इन्होंने इस figure को use किया. So अगर वो यहाँ पे आपसे कहते हैं कि wavelength find out करो, तो दोनों regions के बिल्कुल center की separation, यानी from the center of this compressed region to the center of next compressed region, this would give you the wavelength. Yeah, the center of expanded region till the center of next expanded region, जो भी separation होगी, this would give you the wavelength. And for your reference, sound wave and ultrasound wave are example of longitudinal waves, and इसकी example में आप wave produced in a slinky spring भी लिख सकते हो. अब मैंने यहाँ पर एक sentence mention किया है कि transverse wave can be polarized and longitudinal wave cannot be polarized. That we will get back to in the next class when we will discuss the concept of polarization. And that is a question that I was referring to. It says the graph shows how the displacement of a particle in a wave varies with time. Y-axis पे we have displacement, on x-axis we have time. अब आपसे कहने बताएं कौन सा statement correct है इसमें से. The wave has an amplitude of 2 centimeters. Does the wave has amplitude of 2 centimeter? This is amplitude, right? Yes, it is 2 centimeters. And it could be either transverse wave or longitudinal wave. Yes, that is also correct. We agreed कि सिर्फ उसका इस पैटर्न में होना does not show कि वो transverse ही है हर हाल में. हम longitudinal को भी ऐसे ही represent करते हैं. जैसे पिछले केस में remember oscilloscope ने sound wave को represent किया था किसमें? Transverse wave में. And sound wave अभी हम पढ़ के आ रहे हैं is a longitudinal wave. So yes, longitudinal wave को you can represent this way. This representation does not confirm if the wave is transverse or longitudinal. And आपको ये मजीद confirm होगा जब आप बाकी 3 options देखेंगे और उसकी गलती find out करेंगे. Option B says that wave has an amplitude of 2 centimeter. It is correct and has a time period of 6. Time period is 4. Why do they say it is 6? So this is incorrect. ये वाला part. Then the wave has an amplitude of 4 centimeters. No, 4 is this and that we agreed is not the amplitude. So this is incorrect. And time period has 4 centimeter. इस बार time period सही बताया but amplitude गलत quote किया. And then in last option they say wave has an amplitude of 4 centimeter and it must be transverse. पहली बात amplitude 4 नहीं है and दूसरी बात ये longitudinal भी होने की उतनी ही possibility है जितना इसके transverse होने की है. Clear? You have to memorize word to word definition of transverse and longitudinal wave, that too in the terms of motion of particle. कोई मुझे ये ना कहे the wave in which there is perpendicular separation. मैं इस पे 0 के बजाय -1 कर दूंगी. एंड देन हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के टर्म्स में जनरल बात कर दी. आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि आपने एक्सप्लेन करना है ट्रांसवर्स वेव. all the electromagnetic waves are transverse wave. And then उन्होंने कहा है कि आपने इसको कैटेगराइज भी करना है इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ. आप एंड उसके बाद नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में उन्होंने कहा है कि आपको पता होना चाहिए कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इज द विजिबल रीजन. एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑल दी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे ट्रैवल एट दी स्पीड ऑफ लाइट. सो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक सिंगल पेज से कवर हो जाने चाहिए. 2-3 तो हमें 11 से ही पता है, विजिबल का रीजन एंड लाइट की स्पीड. बाकी भी एक यहाँ पर देख लेते हैं. See the electromagnetic spectrum starting from radio wave, it has a certain wavelength. Then the next we have micro, then we have infrared, and then comes the visible region. We can only perceive this visible region. उसके अलावा अगर कोई रे हमारी तरफ आ भी रही है, we would be unable to see it or observe it.
बट येस देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं. द नेक्स्ट वी हैव इज अल्ट्रावायलेट एंड दूसरी साइड पे इंफ्रारेड था. तो सी राइट नेक्स्ट टू इंफ्रारेड वी हैव विजिबल रीजन का रेड वाला पार्ट, and right before ultraviolet we have visible region का violet वाला part. एंड यहीं पे फिर आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए. वायलेट वाली साइड V, दूसरी तरफ we have R, it is Weber. V is for violet, then we have indigo, then we have blue, green, yellow, orange and then red. Then violet of visible के बाद we have ultraviolet. Ultra, of course, its name suggests more than violet. Its frequency is, its energy is more than that of violet's light. And infra is used for come. So infrared has energy less than the energy of red light. Ultraviolet के बाद we have X-rays and then we have gamma rays. अब यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास ये ट्रेस हुई है वेव, इससे it should be understood that as we move away from radio wave towards the gamma ray, the wavelength decreases and the frequency, that is the number of vibration, increases while the speed remains constant. V is equals to F lambda. While going towards gamma, frequency increases but wavelength decreases so that their product still remains constant, and that constant value is 3 exponent 8 meters per second, which we know as speed of light in vacuum. Why do we say in vacuum? Because medium में आने के बाद wave की speed change हो जाती है. वैक्यूम में जो भी स्पीड थी, मीडियम में आने के बाद वेव स्लो डाउन हो जाती है. कितनी स्लो होगी? इट डिपेंड्स उस मीडियम की डेंसिटी क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. बट वन थिंग फॉर श्योर, मीडियम में आने के बाद वेव की वेलोसिटी कम हो जाती है. लेकिन आपको ये याद रखना है कि मीडियम से फ्रीक्वेंसी को फर्क नहीं पड़ता. यानी रेड लाइट की अपनी जो फ्रीक्वेंसी स्पेस में थी, जब ये रेड लाइट लेट से वाटर से पास करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी उतनी रहेगी. बट हमने तो कहा कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी. इट ओनली मेक्स सेंस अगर इसकी वेवलेंथ भी कम हो जाए. सॉरी, V is equals to F lambda, that means F is equals to V over lambda. फाइनल आंसर सेम कब आएगा? अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो वेवलेंथ को भी कम होना पड़ेगा. So in a medium, velocity as well as wavelength decreases while frequency remains the same. Do we have any confusion यहाँ तक? Radio has the most wavelength and the gamma has the most frequency. और मैं इसको energy के terms में भी कह सकती हूँ. आपके कोर्स का पार्ट नहीं है ये इक्वेशन, but just to relate with frequency, H is a constant, E is energy of wave and F is the frequency of wave, and this equation suggests that frequency and energy are directly related because H तो constant है. So जब मैं कहती हूँ कि gamma की frequency सबसे ज्यादा है, तो this then implies that gamma की energy भी सबसे ज्यादा है. Making sense? Okay. अब all the electromagnetic waves, radio, micro, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma ray, all of them travel at the speed of light in medium. लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मैंने मेंशन किया था, स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया कि आपको विजिबल लाइट का रेंज पता होनी चाहिए. सी विजिबल की रेंज इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. And this is the only region that is visible to us. बाकी को we cannot see, but yes, there are few species जो बाकी radiations को detect कर सकती हैं. जैसे ultraviolet is detectable by bat and others as well. Now, अगर मैं आपको ये 400 और 700 नैनोमीटर वाला इस इंफॉर्मेशन के बाद मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं इसमें से रेड एंड की कौन सी और वायलेट एंड की कौन सी है, तो आप बता सकते हैं? Arup bete, you answer me. 700 nanometer is for violet or for red end of visible region?
700 nanometer. Red. And why do we have question mark आगे? Anyone else would like to differ? Okay. Anyone else would like to differ? See, the discussion we've just had, it would be enough to answer this question. मैंने कहा red is closer to radio and radio has सबसे ज़्यादा wavelength. Violet is closer to gamma and gamma has सबसे ज़्यादा frequency, यानी इसकी wavelength कम है. So don't you think red की wavelength should be ज़्यादा and violet की wavelength should be कम? 700 और 400, इसका मतलब है this is where we have 700 nanometer and this is where we have 400 nanometer. Because red से violet तक आते हुए considering the trend in the spectrum, wavelength कम होनी चाहिए. So this makes us conclude that 700 nanometer corresponds to red and 400 nanometer corresponds to violet. And indigo की 400 से थोड़ी ज़्यादा होगी, blue की और ज़्यादा, green की और ज़्यादा, yellow की और ज़्यादा, then orange की उससे भी ज़्यादा, and then finally increase होकर 700 आ जाएगी red के लिए. अब again, the examiner does not stop here. They say कि ये बेसिक बातें आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, विजिबल रीजन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो, आपको ये पता हो कि ये लाइट के साथ ट्रैवल करता है स्पीड पे, एंड जो लास्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इट इज रेंज ऑफ देयर वेवलेंथ्स. नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड इनकी रेंजेस, द वेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे पता होना चाहिए इज द boundary between different regions does not has to be explicit. यानी see, this is the region. इस region को consider करें. इस wavelength पे रेडियो भी एग्जिस्ट करती है, इस wavelength पे माइक्रोवेव भी एग्जिस्ट करती है. इसी तरह ये वाला रीजन कंसिडर करें. This region corresponds to gamma rays. This region also corresponds to alpha rays. So regions overlap करते हैं electromagnetic radiation के. Clear? First we have established this. अब ये वाली basic description पढ़ें. It says the same, and this is coming from your book, right? There are no clear divisions between the different ranges or bands. This is called one band. This is called other band, right? In the spectrum, this whole is called a spectrum. That gives us information about energy and frequency. The divisions, they are somewhat arbitrary. The naming of subdivision is also arbitrary. For example, microwaves are sometimes regarded as subdivision of radio waves. Microwaves को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं they are small wavelength radio waves. यानी radio wave के region में smaller wavelength वाली side also corresponds to wavelengths. So smaller radio waves are also termed as microwaves. So ये आपसे कह रहे हैं बाउंड्री कोई ऐसी नहीं है जो मैं कहूँ कि इससे कम हर हाल में यही वाले रीजन में फॉल करेगी एंड इससे ज्यादा हर हाल में यही वाले रीजन में फॉलो करेगी. देयर इज सम ओवरलैपिंग एंड दैट द एग्जामिनर नोज वेरी वेल ऑफ, राइट? The wavelength in the range 400 nanometer to 700 nanometer in free space, that is vacuum, they are the visible region and they are the ones which are visible to us, which are visible to human eye. And see again, वेवलेंथ अभी हमने पीछे पढ़ा ना, मटेरियल पार्टिकल में आने के बाद या किसी मीडियम में आने के बाद स्पीड भी कम हो जाती है एंड वेवलेंथ भी कम हो जाती है. तो हम ये जो वेवलेंथ्स की बात कर रहे हैं, भले विजिबल के लिए बात करें या और भी किसी रीजन के लिए बात करें, these wavelengths strictly correspond to space. मीडियम में आने के बाद these values are going to change, frequency will remain same. Now the ranges of X rays and gamma rays, they overlap. The distinction is, फिर difference क्या है, कब X है कब gamma ray है हमारे पास. The X rays are produced when electrons decelerate rapidly or when they hit the target medium at high speed. Production of X rays not the part of your learning objective, लेकिन
आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्स रेज और गामा रेज में द डिफरेंस इज देयर ओरिजिन. Gamma is always originated from within the nucleus and X rays क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी ये जेनरेट होती है जब कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब से, एनर्जेटिक पार्टिकल यानी खास तौर पे इलेक्ट्रॉन, जब वो न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है. Why? Just to give you an idea, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड जब इसके करीब से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, लेट्स से ये यहाँ से स्ट्रेट आ रहा था, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट, देयर इज गोइंग टू बी अट्रैक्शन बिटवीन दीज एंड उस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरता गुजरता जब इसने बिल्कुल सीधा चला जाना था, ये थोड़ा डीसैलरेट होगा और अपने पार्ट से डेविएट होगा. डीसैलरेट हुआ ना, यानी ये स्लो डाउन हो गया, स्पीड कम हुई, यानी मैं कहूंगी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई. बट हमें तो पता है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई वो कहाँ गई, उस एनर्जी का फोटोन जिसको हम लाइट कहते हैं, उस एनर्जी की लाइट जेनरेट हुई, पार्टिकल जेनरेट हुआ जिसको हम एक्स रे का नाम देते हैं. Right, so that is what we mean when they say कि X-ray is produced when electron decelerate rapidly or when they hit a target metal, because जैसे वो target metal को hit करता है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाता है. अब वो जब वो टारगेट मेटल को हिट किया था तो इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ ना कुछ अच्छी खासी किनेटिक एनर्जी थी, इट वाज अ रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन. तो वो जो किनेटिक एनर्जी है, इट गेट्स कन्वर्टेड, इट गेट्स यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ energy, light. This light is also called X-ray because उसकी energy बहुत ज्यादा है and X-rays are high energy electromagnetic radiations. So gamma rays are produced by nuclear reactions such as radioactive decay. कोई न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो वो रेडिएशन जो एमिट आउट करता है, पार्टिकल रेडिएशन भी एमिट कर सकता है, साथ में वी हैड स्टडीड कि वो कभी कभी मासलेस और चार्जलेस रेडिएशन भी एमिट आउट करता है, which is gamma radiation. So there is no difference in alpha and gamma in terms of a specific boundary of wavelength or frequency. इनकी ओरिजिन में ज्यादा डिफरेंस है. एंड देन नीचे फिर क्योंकि एग्जामिनर ने आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दिया, आपको रेंज याद होनी चाहिए. दिस इज व्हाट यू हैव टू रट्टा लगाना है जिसका आपने इस रीजन में. ऑफ कोर्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से तो हमें समझ में आ गई, रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, माइक्रो की उससे थोड़ी कम, इंफ्रा की और कम, विजिबल की और कम एंड देन गामा की सबसे कम. इसीलिए स्टार्टिंग फ्रॉम 10 की पावर 6 the wavelength has become so smaller that it went to 10 की power minus 16 meters, right? and ये मेरे पास corresponding values मुझे याद होनी चाहिए. अभी हम पढ़कर गए थे ना कि विजिबल में 400 नैनोमीटर्स था, सो 400 नैनोमीटर्स, नैनो की जगह आई कैन राइट 10 की पावर माइनस 9 चूंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर है फॉर दिस प्रीफिक्स. एंड देन फिर मैंने पॉइंट को 2 डिजिट्स दूसरी तरफ मूव करवाया, उसकी जगह यहाँ +2 कर दिया. तो मेरे पास फाइनल आंसर आया 4 into 10 raised to the power -7. In case this -7 was bothering you कि अभी तो हम 400 और 700 पढ़ के आए थे नैनो में, तो ये -7 और 4 और 7 कैसे आ गए? This is the conversion factor. You can say visible extends from 400 to 900 nanometer, or you can say visible stands from 4 exponent -7 meter till 7 exponent -7 meters. Values आपने याद करनी है ये वाली. And see, it is also obvious from here. X-ray में -10 से -13 का region आ रहा है, which is also a part of gamma ray. So yes, there is an overlapping between these. So examiner आपको, let's say वो आपसे कहते हैं कि एक फोटोन है हमारे पास, like particle of energy है, जिसकी हमारे पास जो wavelength है, it is 10 raised to the power -14. Tell me to which electromagnetic spectrum का region it corresponds to. So आप उसमें मेंशन करेंगे कि it can either correspond to alpha or it can either correspond to gamma depending on its origin. और अगर वो स्पेसिफिकली कह दे कि 5 10 raised to the power -7 का मेरे पास एक वेव है, आप मुझे बताइए किस रीजन को कॉरेस्पॉन्ड करेगी. दैट इज व्हेन वी वुड से कि वो यकीनन विजिबल रीजन को कॉरेस्पॉन्ड करेगी. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? आर वी ऑल फॉलोइंग? कोई सो तो नहीं रहा? ओके, एसन इज अवेक. ये almost हो गया वो. Rayan Ali is काफी है also इसका in senses. एक slide I'll add और and then उसके बाद हम जाएंगे
क्लास शुरू करने में इतना टाइम लग जाता है, स्केड्यूल करने में इतना टाइम लग जाता है, तो चलें कुछ थोड़ा तो पढ़ें। एंड अभी तक हमने कुछ बहुत नया बहुत अलग नहीं पढ़ा, जो चीजें हमें ऑलरेडी पता थी बस हम उस पर थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप कर रहे हैं। रयान अहमद इज ऑल्सो अवेलेबल। अभी रयान का माइक अनम्यूट हुआ था। ओके, मैम नींद आ रही है, वैसे ही बाकी क्लास करें ना करें। कोई बात नहीं, आप लोग को नींद आ रही है तो 15 मिनट, आप 1.5 महीने बाद आप लोग जिस सिचुएशन में होंगे ना वो सोचें। उस टाइम ज्यादा नींद आ रही होगी और इस टाइम तो अच्छा पेपर देने के लिए नींद की जरूरत भी होगी। आज तो पता है कि सुबह उठ के पेपर नहीं है, राइट? So let's wait for like 15 minutes at most and then we'll end this. चलिए ओके। ठीक है? So we are clear with electromagnetic spectrum. Next we are going to see the last concept from this class. तो देख लो नीचे कुछ रह तो नहीं गया। Okay. The last concept from this class, it is intensity of electromagnetic radiation. पहले पढ़ते हैं हमने डिस्क्राइब कैसे किया यहाँ पर। This is from your book, while this is from Save My Exams. And this is some additional information that I felt was needed to be mentioned here. Again, एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। आपको उसकी इंटेंसिटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दी, तो यू शुड बी एबल टू रिलेट इट विद द एम्पलीट्यूड एंड कोई ऐसी सोर्स जो स्फेरिकल है, यानी जो हर जगह पर लाइट स्प्रेड करती है, एनर्जी स्प्रेड करती है। जैसे अगर मैं उसकी बात करूं, एक बल्ब है, राइट? आपने बल्ब रखा है तो वो सिर्फ सामने की डायरेक्शन में लाइट नहीं फेंकेगा, वो अपनी सराउंडिंग में भी लाइट देगा। तो जो आपके पास स्फेरिकल सोर्स होती है, सोर्स से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, आप मुझे बताएं कि वेव के एम्पलीट्यूड में और उसकी इंटेंसिटी में कैसा फर्क आएगा। तो ये वाले जो एक आध पॉइंट्स हैं दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम दिस स्लाइड। पहले तो हम रिकॉल करते हैं इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वही जो हम पहले भी पढ़ के आते थे। इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, इट इज मेंशन्ड हियर। एंड मैं चाहूं तो मैं इस पावर को मजीद ब्रेक डाउन कर सकती हूँ इन दी टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। एंड ये जो डिनोमिनेटर में एरिया था एज इट इज, फिर मैं कह सकती हूँ इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज, या तो मैं डायरेक्टली कह दूं कि रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, या फिर मैं कह दूं कि इट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्लियर? सो या तो रेट ऑफ एनर्जी के टर्म्स में बात करूं और फिर पर यूनिट को हटा दूं डायरेक्टली, या फिर दोनों को ब्रेक करके बता दूं। So the term intensity has a very precise meaning in physics. Intensity of a wave is defined as rate of energy transmitted, जिसको collectively हम power का नाम देते हैं, per unit area at right angle to the wave velocity. यानी जिस भी direction में wave move कर रही थी, let's say wave जैसे इस केस में देखें, the wave is moving in this direction and ये जो perpendicular area है, इस पे उसने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, दैट वुड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी। एंड मुझे क्यों जरूरत पड़ी ये फाइंड आउट करने की कि कितनी एनर्जी ट्रांसमिट होगी, बिकॉज शुरू से हम यही तो कहते आ रहे हैं कि वेव ट्रांसफर्स एनर्जी। ठीक है, वेव ट्रांसफर्स एनर्जी, देन कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी इट ट्रांसफर्स, कितने टाइम में, कितने एरिया पे। सो दैट इज वेयर दिस कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम। इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन वॉट per square meter. Why do we measure intensity in this unit? अभी हमने कहा intensity is power per unit area. Power is measured in watt, while area is measured in meters square. So yes, the unit of intensity is watt per meter square, which is equivalent to power को हम watt के बजाय joule per second भी लिखते हैं ना, बट फिर हम उसको कलेक्टिवली वॉट का नाम देते हैं। सो हमेशा आप यही लिखोगे, बट जस्ट सो यू नो इंटेंसिटी का जो अपना यूनिट है, बेस यूनिट्स के टर्म्स में जब आपको खोलना हो तो यू वुड गो टू दिस जूल्स पर सेकेंड इनटू मीटर स्क्वायर, एंड देन फिर आप उस जूल्स को मजीद ओपन करेंगे। लेट्स डू इट हियर। इट वाज वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट की जगह मैंने लिखा जूल्स पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। अब जूल्स इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क डन, वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मैंने मीटर लिख दिया, बाकी नीचे वाली चीजें एज इट इज। फोर्स विच वाज इन न्यूटन, उसकी जगह आई एम गोइंग टू राइट किलोग्राम्स इनटू मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर।
अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इंटेंसिटी का SI यूनिट, बेस यूनिट पता चल जाएगा, नॉट SI यूनिट. This meter square gets cancelled with this meter square, so kilogram per cubic second. That is the unit for intensity. Again, base. Otherwise, you would always go with watt per meter square. Now, अब ये जो वर्टिकल एरिया वाला पॉइंट मेंशन हुआ था उसको मजीद ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जांपल, when the sun is directly overhead, the intensity of its radiation is about 1 kilowatt per meter square. यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर सन 1 किलोवाट की एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, पावर ट्रांसफर कर रहा है. यानी 1 सेकेंड में 1000 जूल्स की एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पर मीटर स्क्वायर के एरिया पर. इट इज दिस ह्यूज एनर्जी. दिस मीन्स दैट एनर्जी अराइव्स एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट, जिसको आप 1000 जूल्स भी कह सकते हो, किलो टू प्रेजेंट 1000 एंड वॉट की जगह सिंपली जूल्स पर सेकेंड, ऑन 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ. सो यस, जैसे जैसे आप सोर्स के करीब जाते जाओ, यानी जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाओ, वेयर द सन इज कंपेरेटिवली क्लोजर, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा एनर्जी डिलीवर करेगा 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर. दैट इज व्हाई वी से इफ यू गो क्लोजर टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम सन इंक्रीजेस. एंड दिस राइट हियर इज द फॉर्मूला जो अभी हमने जनरल देखा है. Intensity of a wave generally decreases as it travels. जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाते जाते हो, वेव की इंटेंसिटी कम होती जाती है. साउंड के टर्म्स में अगर आप देखो तो साउंड की लाउडनेस कम होती जाती है. लाइट सोर्स से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओ, ब्राइटनेस कम होती जाती है. किसी हीटिंग सोर्स से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओ, ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर कम होता जाता है. क्लियर? सो हम कह रहे हैं जब आप वेव से उसकी सोर्स से दूर जा रहे होते हो तो इंटेंसिटी जनरली कम हो रही है. मैंने जनरली का इंटेंसिटी कम हो रही है, और फिर अब मैं रिलेट करूंगी ये इंटेंसिटी किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है. आप सोर्स से दूर गए, इंटेंसिटी कम हो गई. क्लियर? एंड फिर ये आपको कह रहे हैं कि जब आप किसी सोर्स से दूर जाते हो, लेट्स से आप किसी साउंड सोर्स से दूर जाते हो, तो उसका एम्पलीट्यूड भी कम होता है. इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड रिलेटेड है, बिकॉज जब इंटेंसिटी कम हो रही है तब एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है, और वाइस वर्सा. जब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है किसी वेव का, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो वो एनर्जी डिलीवर कर रहा था, वो एनर्जी भी कम हो रही है. This suggests that intensity of a wave is related to the amplitude of wave. In fact, intensity is directly proportional to the amplitude. अभी तक मुझे ये समझ आई, जब एम्पलीट्यूड कम हुआ इंटेंसिटी भी कम हुई, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि जब किसी वेव का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली हाफ हो रहा है तो उससे मिलने वाली इंटेंसिटी भी एग्जैक्टली हाफ हो जाए. नो, दैट वाज नॉट द केस. जब हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो हमें पता चला कि जब एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स कम हो रहा है, यानी हाफ हो रहा है, तो इंटेंसिटी 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स कम हो रही है. जब एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स कम हो रहा है तो इंटेंसिटी 3 टाइम्स नहीं कम हो रही, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स कम हो रही है. जब एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स कम हो रहा है तो इंटेंसिटी कम तो हो रही है बट नॉट 4 टाइम्स, 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स कम हो रही है. इस ऑब्जर्वेशन से फिर हमने ये इक्वेशन बनाई कि इंटेंसिटी is not only related to amplitude, it is proportional to the square of amplitude. This is a very important equation in terms of numerical. Examiner इससे numerical question देते हैं आपको, and उसी की visual representation मेरे पास यहाँ पर आ गई. ये मैंने एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बताया, एंड ये मैं सोर्स से सेपरेशन के टर्म्स में बता रही हूँ कि लेट्स से ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स थी, यानी एक लाइट सोर्स जो पूरी सराउंडिंग में स्फेरिकली वेव्स को एमिट आउट कर रही थी. जब आप इस सोर्स से लेट्स से इस सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर फाइंड आउट करोगे इंटेंसिटी, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी. एंड जब आप इसी सोर्स से सर्टेन डिस्टेंस आर के बजाय डबल द डिस्टेंस रीजन पर जब आप इंटेंसिटी निकालना चाहोगे, तो वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी. क्यों? बिकॉज मुझे समझ आया जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जा रहे हो एरिया बढ़ रहा है, एंड ऊपर अभी हम पढ़ के तो आए हैं कि इंटेंसिटी एंड एरिया आर इनवर्सली रिलेटेड. तो जैसे जैसे
वो सोर्स जिस एरिया पर अपनी एनर्जी डिलीवर कर रही है, जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाते जाओगे वो एरिया बढ़ता जाता है, एंड एरिया बढ़ने का मतलब होता है कि अब इंटेंसिटी कम हो गई है, यानी एक सेम अमाउंट ऑफ पावर अब पहले के मुकाबले में ज्यादा एरिया पर इंसिडेंट कर रहा है, सो द इंटेंसिटी इवेंचुअली डिक्रीजेस। दिस शोज जब आप सोर्स से आर के डिस्टेंस पे थे तो कुछ ना कुछ एरिया था, जब आपने डिस्टेंस डबल कर दिया तो एरिया सी 1 2 3 4 ए के मुकाबले में 4 ए हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया एरिया, एंड जब आप उससे 3 आर के डिफरेंस पे गए तो एरिया ए के बजाय 9 ए हो गया। वाई? बिकॉज हमें पता है ना एरिया इज पाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस जब आप यानी रेडियस यानी सोर्स के सेंटर से जो डिस्टेंस है जब आप 2 टाइम्स कर देते हो तो एरिया के फैक्टर में 4 का डिफरेंस आ जाता है। जब आप 3 टाइम्स कर दोगे तो स्क्वायर होने के बाद 9 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने पहले ये आइडेंटिफाई किया, जब आप सोर्स से कोई दूर का पॉइंट कंसिडर करते हो तो एरिया इंक्रीज हो जाता है, एंड इंटेंसिटी और एरिया का रिलेशन सजेस्ट करता है कि इंटेंसिटी डिक्रीज हो जानी चाहिए। एंड इसी तरह जब आप एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हो तो रिलेशन सजेस्ट के इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, but they are not directly related. And now that we have both points on our fingerprints, separation के terms में भी and amplitude के terms में भी, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में हैं। बट उससे पहले जस्ट सो यू नो, कोई भी लॉ जो सेपरेशन के बेसिस पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज मेंशन कर रहा होता है एंड स्क्वायर के टर्म्स में मेंशन कर रहा होता है, हम इसको हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सी इट सेज इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, एरिया की जगह आप लिख दो ये। अगर आप इन चीजों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो तो आप कहोगे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। सी इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर, इस लॉ को हम कहते हैं दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी इंटेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ हम इसको भी कहते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, बिकॉज अगेन इसमें फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ R। एंड यही सेम फॉर्मूला हम मैसेस के लिए भी लिखते हैं G m1 m2, उसमें हम कहते हैं force is inversely related to the square of r again, and in इस तरह के जितने भी laws हैं उन सबको हम inverse square laws कहते हैं। Clear? So this is one of the inverse square laws because it shows that intensity is inversely related to the square of separation between the source and the point at which we have to find the intensity. Now if one wave has twice the amplitude, back at this equation, अगर मैं कह रही हूँ कि एक वेव का अपना कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये कुछ ना कुछ एनर्जी डिलीवर कर रही है सर्टेन एरिया पर, यानी इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है। अब मैं इसको कंपेयर करूँ किसी दूसरी वेव से जिसका एम्पलीट्यूड डबल है, आप मुझे बताएं उसकी वजह से इंटेंसिटी कितनी आएगी। फॉर्मूला सेज इफ एम्पलीट्यूड हैज डबल्ड, ए के बजाय 2a हो गया है, तो इंटेंसिटी शुड बी, बिकॉज ये स्क्वायर से रिलेटेड है ना, स्क्वायर अप्लाइड ऑन बोथ, इंटेंसिटी जो पहले a स्क्वायर को कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी अब इट वुड कॉरेस्पॉन्ड टू 4 टाइम्स a स्क्वायर, यानी यू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स, intensity increases square of 2 4 times, you increase the amplitude 3 times, intensity increases square of 3 9 times, you increase the amplitude 4 times, the intensity increases square of 4 16 times. Do we have any confusion यहाँ तक? फिर बस एक लास्ट 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन we'll end the class. Going well? Okay. I'll take you have said no miss on no confusion and not on going well. चलें जी, बस एक ये लास्ट छोटा सा क्वेश्चन देखें। इट सेज अ वेव फ्रॉम अ सोर्स हैज एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। जब एम्पलीट्यूड था 5 सेंटीमीटर तो ये वेव, इसकी जो इंटेंसिटी थी यानी रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एनर्जी एट अ सर्टेन एरिया वाज 400 watt per meter square.
The amplitude of the wave is now increased. Let's call them 1. अब इस वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है एंड इट इज नाउ 10 सेंटीमीटर. अब आप मुझे इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताओ, या तो आप रिलेशन अप्लाई करें. आप कहें एरिया पहले के मुकाबले में 2 टाइम्स बढ़ गया है, तो इंटेंसिटी पहले के मुकाबले में 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जानी चाहिए. यानी अगर पहले इट वाज 400 तो नाउ इट शुड बी 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 व्हिच इज 1600 वॉट पर मीटर स्क्वायर. या फिर जो एक ऑल्टरनेट तरीका है हमारे पास वो ये है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है फिर हमारे पास. so, मैंने कहा इट इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ए का स्क्वायर. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इंटेंसिटी और एरिया के स्क्वायर का रेशो शुड रिमेन सेम. सो मैं क्या करूं, पहले वाले के लिए इंटेंसिटी और एरिया के स्क्वायर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशो इज कांस्टेंट एंड दूसरे के केस में भी एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी वाला जो फैक्टर था दिस शुड रिमेन कांस्टेंट. दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों को इक्वेट करना है बिकॉज आप सेम ही फ्रीक्वेंसी की वेव की बात कर रहे हो ना. सो यू कैन डायरेक्टली राइट I1 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर should equal I2 divided by A2 का square. I know I1, that is intensity of this. I know amplitude. I know the amplitude of the other. Rewrite करके मैं I2 की value find out कर सकती हूँ. So either you go with the qualitative analysis कि amplitude double हो गया है तो intensity 4 times बढ़ जानी चाहिए, or you go with this equation and find quantitatively कि इसके हिसाब से ये final answer आना चाहिए. एक पार्ट हमने कर लिया इस क्वेश्चन का. Now in part B, they are saying that the intensity of wave is now decreased to 100 watt per meter square. आप मुझे एम्पलीट्यूड बताओ, फिर पहली वेव से ही कंपेयर करें. आप कहें पहली वेव का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर था जब इंटेंसिटी 400 आ रही थी. अब पार्ट ए को स्किप कर दें, सीधा पार्ट बी पर जाएं. अभी आपसे कह रहे हैं कि इंटेंसिटी डिक्रीज होकर 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो गई है. आप मुझे बताएं एम्पलीट्यूड कितना होगा. इंटेंसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज हुई है, इसका इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई है. इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इनवर्सली रिलेटेड थे, इसका मतलब है एरिया यकीनन इंक्रीज हुआ होगा. एक बात मुझे ये समझ आ गई, कितने टाइम्स excuse me saying this a bar area, we know it is amplitude, right? So do not mistake it when I say it is area, it is amplitude. So yes, amplitude मुझे find out करना है. intensity मुझे समझ में आ गई 4 times कम हुई है. एक intensity कम हुई है तो area यकीनन amplitude यकीनन बढ़ गया होगा. intensity 4 times कम हुई है तो area 4 का रूट टाइम्स कम बढ़ा होगा, that is 2. यानी पहले the amplitude was 5, now it should be 10 centimeters. Do we have any confusion यहाँ तक? बस एक सवाल है. एक मिनट, did we do something wrong here? Yes, we did. चलें पहले इसको उस फॉर्मूला से निकालें. एक मिनट ऐसन बेटे, I'll take your question. 5 over 400, बल्कि रेसिप्रोकेट करेंगे ना. So, ऊपर we have intensity over amplitude का स्क्वायर should equal इंटेंसिटी जो अभी हमें पता है 100 ओवर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. रीराइट करें, एम्पलीट्यूड को सब्जेक्ट बना दें. 5 स्क्वायर केम हियर एंड 400 डाउन. 1, दिस इज 4. 5 का स्क्वायर इज 25 divided by 4. This gives us 6 point something, right? Let's write it 6.1 and this is the value of a square of amplitude. एम्पलीट्यूड कैसे निकालूंगी, जब मैं इसको रूट कर दूंगी. क्लियर? यहां से मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा.
आप बताएं मुझे एहसन बेटे, व्हाट इज योर क्वेश्चन? नहीं मिस, समझ आ गया। आ गया? जी Okay. मिस। बेटे anyone else who has any question? नहीं मिस। बस एक नजर इधर देख लें जल्दी से। We started with illustration in ropes and springs. हमने basic terminologies देखी, फिर हमने टाइम बेस और वाई गेन के टर्म्स में बात की, एंड इन्होंने कहा यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड निकालना आना चाहिए, जिसका हमने एक आध सवाल देखा। फिर इन्होंने आपसे कहा v इक्वल टू एफ लैम्डा आपको डिराइव करनी आनी चाहिए, छोटी सी डेरिवेशन थी वो हमने देख ली। देन दे सेड आपको ये इक्वेशन यूज करनी आनी चाहिए v इक्वल एफ लैम्डा, इससे रिलेटेड एक सवाल हमने कर लिया था, 3 मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको नीचे मेंशन कर दिए थे। फिर इन्होंने कहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल मीडियम, एंड वो एनर्जी का जब आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो तो फिर आपको ये इक्वेशन यूज करनी आनी चाहिए, दैट इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया एंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो 7.1 हो गई। देन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का आपको कंपैरिजन आना चाहिए कि एक में वी हैव सीरीज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, दूसरे में वी हैव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। एक जो है उसमें हमारे पास ऑसिलेशन इज पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, दूसरे में इट इज परपेंडिकुलर, एंड एक एक आप उसकी एग्जांपल मेंशन कर दो। एंड देन आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए, यानी जैसे मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल में बताया ना, एक जगह लाइंस आर क्लोजर, दूसरी जगह दे आर फार्दर। ट्रांसवर्स के केस में क्रस्ट कहाँ है, ट्रफ कहाँ है, नॉड क्या है, एंटी नॉड क्या है, दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस रीजन। 7.3 भी बड़ा मजे का टॉपिक है, वील कवर इट इंशाल्लाह कल, दैट इज डोपलर्स इफेक्ट, छोटा सा टॉपिक है। Then electromagnetic spectrum में they are saying state that all electromagnetic waves are transverse. They travel with the same speed c, that is the speed of light, in free space. Medium में आने के बाद speed कम हो रही है. Recall the approximate range of wavelengths in free space of the principal regions. Principal ये जो मोटे मोटे regions है ना जो हम पढ़ते हैं wave के, रेडियो माइक्रो वगैरह, इनके रेडियो से शुरू करके गैमा तक आपको इनकी वेवलेंथ की रेंज पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी वी हैव नथिंग टू डू विद, हालांकि फ्रीक्वेंसी वुड हैव बीन अ बेटर अप्रोच बिकॉज स्पेस से मीडियम में आते हुए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि वेवलेंथ के टर्म्स में आना चाहिए, तो हम वेवलेंथ के टर्म्स में देख लेते हैं। Then recall that wavelengths in the range 400 to 700 nanometer in free space, they are visible to human eye, and इसको हम visible region का नाम देते हैं। ये भी हमने कवर कर लिया था। Now we are left with Doppler's effect, and उसके अलावा these two learning objectives which fall under polarization. So polarization और Doppler's effect इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। Then we will start our last chapter because 9, 10 and 11 we are done with. We'll start superposition then. ठीक, I'm taking as we do not have question आज की क्लास में से. Please acknowledge if we have. Okay, okay. I thought मेरी meeting वापस से disconnect हो गई थी. Please acknowledge if this is the case. We do not have any questions. It is understood. Okay, so let's end this lesson here. I've tried recording the lesson. I'll see. It is for 1 hour and 48 minutes. I'll see if I can attach it on group or on GCR. Next class में we'll start polarization and Doppler's effect, and then we'll move towards इसी topic के past paper questions. ठीक? So till then, Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz and Walaikum Assalam.